Welcome to this video. So there are thousands of tech companies which hire tech graduates right after college and give them a barely sustainable salary. The amount of salary that these companies give will allow you to just maintain your life at a very basic level. You won't have any room for any other expenditure other than your necessities. Now one might think कि यार मेरे कॉलेज का तो मिनिमम CTC ही 3 लाख रुपए है एंड ये सब चीज़ें तो 3rd and 4th ग्रेड कॉलेजेस में होती होंगी. बट माई फ्रेंड, a CTC of 3 lakh rupees will hardly put in your pocket 15 to 20,000 rupees per month. And trust me on this, इतने से नहीं हो सकता. Now the worst part is that recruiters say that don't worry about money. Money will come later. Just focus on working, gaining experience, and blah blah blah. But let me tell you, this is complete. Follow the steps that I have listed in this video so that you can at least save yourself from such a trap and get yourself a very decent job. Let us talk about what is a good job. Now, I'm not talking about FANG jobs. I'm talking about good, sustainable jobs. Let us evaluate a job on 3 factors to help us boil down to what is a sustainable job. The number 1 factor is salary. Now, as I told you previously in the video, if your CTC is 3 lakh rupees per annum, then you're hardly getting 15 to 20,000 rupees per month, which according to me is not possible. How will you manage your rent, your personal expenses, and your investment with those 15 to 20,000 rupees? So, what we will do, we'll try to aim for a minimum CTC of 5 lakh rupees, which will at least put in your pocket 25 to 30,000 rupees per month, which I think is a good amount. Now, the second factor is the company culture. Now, the only thing which matters in company culture and the only way that you can find it out is by talking to the previous employees of that company. जनरली जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी सेट ऑफ रूल्स कि एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. सेकेंड पार्ट मोर इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. सो विल टेक दैट ऑल्सो इन टू कंसिडरेशन. एंड फाइनली द थर्ड फैक्टर इज वर्क लोकेशन. नाउ ट्रस्ट मी ऑन दिस, फॉर मी एटलीस्ट वर्क लोकेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी. वाई? लेट्स से कल को कोई रिक्रूटर आता है जो मेरे को मेरी करंट मंथली सैलरी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा दे रहा है, बट टेल्स मी टू कम टू बैंगलोर एंड वर्क देयर. आई एम नॉट गोइंग टू स्विच माई जॉब. वाई? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि भाई जॉब स्विच करने में, टॉकिंग फ्रॉम अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब स्विच करने में सिर्फ एक रेंट ही तो बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है. आपको रेंट देना पड़ेगा वहाँ पे. फिर हर वीकेंड यू हैव टू, नॉट यू विल हैव टू, बट यू विल वांट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, यहाँ जाना वहाँ जाना, एंड अननेसेसरी एक्सपेंस इन एवरीथिंग. सो I'm not saying this entirely from a money point of view, but this might be different for you, so don't quote me on this. Let's start. Leave development for some time. Now you must be in your 2nd or 3rd year of engineering and maybe आप ऐसे courses कर रहे होंगे जैसे कि web development, Android development, machine learning and what not. But trust me on this, you should leave those things for some time and in fact prioritize them less. Now why I'm saying this? होता क्या है कि जब भी कोई companies placement के लिए आती हैं, the first thing or the first round which they test you is on basic coding, like how can you code to solve certain problems in different situations, or most probably you're going to get different MCQs based on DSA concepts. Your knowledge on how to create a very good website or how to create a very good app is not going to help you there. ये सब चीज़ें काम आती हैं बाद में. जब आप ये राउंड पूरा कर लेंगे, देन उसके बाद आपको इन चीज़ों पर टेस्ट किया जाएगा कि आपकी जो फील्ड ऑफ चॉइस है, जैसे कि मेरी केस में एंड्रॉइड डेवलपमेंट थी, आप उसमें कितने एफिशिएंट हैं. नाउ देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, लाइक पीपल माइट से कि यार ऐसी कंपनीज भी तो होती हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट को देख के, दैट इज मेरे केस में या फिर आपके केस में, कुछ भी आपकी फील्ड को देख के आपको जॉब दे देगी. बट यार कहने को तो फिर ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो CS डिग्री के बिना भी जॉब दे देती हैं. सो इन बातों कोई पॉइंट नहीं है. आपको करना क्या चाहिए, यू शुड स्टॉप डेवलपमेंट फॉर सम टाइम एंड गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, हैकररैंक, एंड वहाँ पे प्रैक्टिस करो डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड गेट through with all the concepts of DSA. Practice mental maths. Now why I'm saying this? Actually जब भी कोई कंपनी आती है तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि DSA एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग, इस पे आपको टेस्ट किया जाता है. इससे भी पहले एक राउंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, बहुत बेसिक से मैथ्स के लॉजिक के क्वेश्चंस. नाउ सबसे पहली बात, जनरली लोग ये बोलते हैं कि यार हम इतने भी बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि एप्टीट्यूड सॉल्व ना कर सके. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबसे पहली बात, वो इतना भी आसान नहीं होता है एंड तुम इतने भी तेज़ नहीं हो कि वो सारे बिना पढ़े या बिना आइडिया ले आप सॉल्व कर दो. बट इतना मुश्किल भी नहीं है. बात सिर्फ ये है कि किस इंसान ने उस टाइप के क्वेश्चंस पहले देखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं.
क्या क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रेशन पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे, टाइम इन वर्क के क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट एज इन पैटर्न कंप्लीशन क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने उस क्वेश्चंस को पहले किया हुआ होगा तो जैसे एग्जाम में आएगा यू विल बी लाइक अरे हाँ यार इस पैटर्न का तो मैंने किया हुआ है, एंड आप उसको तुरंत सॉल्व कर दोगे। सो इफ़ यू लिसन टू मी, आप थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू कर देंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, एंड गेट यूज्ड टू द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। लर्न हाउ टू स्पीक। नाउ आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस फैक्ट कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। द वे यू स्पीक कैन ईदर हेल्प यू टू मेक इट or break it. Sometimes the interviewer is not trying to expect you to answer each and every question जो वो पूछ रहा है, but he just wants to listen कि आप सोच कैसे रहे हैं, but उसके लिए भी बोलना तो आना चाहिए ना। तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स से कि मैं आपको अभी एक सिनेरियो दिखाऊंगा जिसमें दो इंडिविजुअल्स हैं, एक को बात करनी आती है, ही नोज हाउ टू स्पीक, एंड एक को नहीं आती है, एंड उनसे हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर दोनों को ही नहीं पता है। ओके, the cars. Okay, so we need to calculate the number of cars in our area. That's a trick question. Let me think about this. What we can do is that we can go to the nearby petrol pumps in our area, and maybe we can stay there for 1 hour, get to know how many cars does that petrol pump have. And we can do this for a period of 1 week just to get an average amount of cars that we have in our area. Did you see that? आपने डिफरेंस देखा? जो सेकंड इंडिविजुअल था उसको भी आंसर नहीं आता था, बट वो बात कर रहा था, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं टूटने दे रहा था, और यही चीज़ आपको सीखनी है। नाउ आपको खुद रियलाइज हो गया होगा कि जो सेकंड पर्सन था भले उसको नहीं आता था, बट उसके चांसेस सिलेक्ट होने के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कैंडिडेट। सो यही आपको सीखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, यू कैन प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, एंड इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन गेट ऑन अ कॉल विद अ फ्रेंड एंड उसके साथ बात करके देखो कि आपको बोलना आना चाहिए। ऐसे गुमसुम बैठ के मत आ जाना इंटरव्यू में, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, बोल के जरूर आना है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। वाई आई एम सेइंग दिस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई कॉलेज और इन जनरल पीपल, वो हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ दिन सारी प्रिपरेशन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिविजन लगाएंगे, हर चीज़ करते हैं, बट जब कंपनी आती है वो उसका ऑफर लेटर पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनका दिमाग कैसे चलता है। यार ये कंपनी तो 12 लाख पर एनम का CTC दे रही है, इतने अच्छे लोग बैठे हैं कॉलेज में, मेरे से इतने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लेगी है, मैंने तो 1 महीना पहले शुरू करा है, मेरे को क्यों लेगी है। एंड वो ये बोल के अपने आप को पहले ही मान लेते हैं कि भाई हमारा नहीं हो सकता। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से अच्छे लोगों का नहीं होता है, एंड बेकार से बेकार लोग अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। सो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप उसके वर्दी हैं नहीं है, ना उसका आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे बेटर लोग हैं, क्योंकि आपसे बेटर लोग तो हर चीज़ में होंगे दुनिया में। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। यू गॉट इट। सो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ब्रश अप ऑन सम बेसिक्स। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्किंग। ये सब सब्जेक्ट्स आपने अपने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में कोर में या फिर अपने इलेक्टिव्स में ज़रूर करे होंगे। नाउ यू आर नॉट डायरेक्टली टेस्टेड ऑन दिस सब्जेक्ट जब आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं, बट आपको अपने पेपर में कहीं कहीं जगह पे थोड़े MCQs मिलेंगे जो इन टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे, या फिर मे बी आपको इंटरव्यूज़ में कभी कभी डायरेक्टली इन टॉपिक्स के लिए पूछ लिया जाएगा कभी कभी। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप ये चीज़ आंसर कर लेते हैं, so this is what will give you an edge over all the other people who are also participating in that interview or for that company, क्योंकि हर इंसान इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करता है। सब लोग सिर्फ DSA या फिर कम्युनिटिव कोडिंग इसी पे फोकस करते हैं। नाउ आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक ऐसे हैं इंडिविजुअल हैं जो अभी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सो मेक श्योर आप उसके नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि लेट मी टेल यू, मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में जो मेरी कंपनी का फाइनल राउंड था, वो एक्सपेक्टिंग कि मेरे से DSA पूछेंगे या कोडिंग करवाएंगे, बट मेरा पूरा इंटरव्यू थ्योरेटिकल था, एंड मेरे से सारी वही चीज़ें पूछी गई थी जो मैंने इन कोर्स में पढ़ी हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस एंड मेक श्योर आप उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें, जिससे आप बिल्कुल भूल ना जाएं इस चीज़ को। सो गाइज, दिस इज ऑल दैट टू टीच यू इन दिस वीडियो। ट्रस्ट मी, जो भी मैंने आपको पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं, जस्ट फॉलो देम एंड मेक श्योर कि आप इन सब पॉइंट्स की तरफ डेली वर्क कर रहे हैं, एंड डेली आपका कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। एंड बाय द एंड ऑफ योर प्लेसमेंट सीजन इन योर कॉलेज, यू वोंट बिलीव कि आपको ऐसी भी प्लेसमेंट मिल सकती थी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।
Thank you so much, and let's meet in the next part.